this is 10, 18, 8. So I will take the class up to 11, 18. Right? Yes. Okay. So conservation laws in transport phenomena. This is the topic of today. So in our previous class, we have tried to get the overview of the transport phenomena. We have said that there is a conservation of there is a momentum transport, there is energy transport, and there is mass transport. So based upon these transports, there are some transfers like heat, there is a transfer of mass, there is transfer of energy and all. So based upon that, there are few laws. जो लोगों ने last class में introduced given the names. Like the first one is called the continuity equation. आज हम basically दो laws के बारे में discuss करेंगे. Continuity equation और दूसरा है Bernoulli's equation. Continuity equation is conservation of mass, and Bernoulli's equation is conservation of energy. And both of them are basically related to fluid mechanics. We will not consider heat and mass, heat transfer today. हम लोग सिर्फ fluid mechanics related conservation laws के बारे में discuss करेंगे. Right? So let us first start with continuity equation. Continuity equation, as I have told you, it is the conservation of mass. इसका basic concept है mass cannot be created, not be destroyed. So इसका जो basic relation है, that is del rho by del t plus divergence of is equal to 0. This is the continuity equation. Okay. So this is the density. It is mainly expressed in kg per meter cube, and this is the velocity, the vector quantity, meter per second. Okay. So the first term, this term, del rho by del t, so you can understand what it means, the change in density. Change in density with respect to time. ठीक है? Interesting है ये वाला second term. This term is called net mass flux. Net mass flux. Flux, you know what is flux? Something per unit area per unit time. So it mainly represents mass passing through per unit area per unit time. Right? This is the change in density with respect to time. So what is the law is saying that if a change in density is taking place in a certain region, so it will be compensated by the mass flux, or rather it is the opposite thing. Mass flux will be compensated by a change in density. Last class में classification of fluids में I mentioned that there is something called incompressible fluid.
Incompressible fluid. What is incompressible fluid? Fluid where density is constant with respect to time. So for an incompressible fluid, this is constant, so it implies that del rho by del T should be equal to what? Should be equal to 0. है ना? एग्जाम्पल, ये बार बार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाउंड्री है. Example, what is the example of an incompressible fluid? Water. So if we put this condition in the continuity equation, original continuity equation, what considering an incompressible fluid, हमारी इक्वेशन क्या होगा? सिंपल, it will be simply del dot V. So this is another simplified form of the continuity equation. Del dot V is equal to 0. ठीक है. Now let us concentrate on this one, flux, mass flux. Mass flux का यूनिट क्या होना चाहिए? What should be the unit of mass flux? Mass per unit area per unit time, है ना? It should be, if we consider mass in terms of kg per meter square second, ये होना चाहिए. ठीक है? यहाँ पे del रो इंटू वी, इसका क्या यूनिट होगा? It would be kg per meter cube into ठीक है ना? So it is again equal to kg per meter square. Okay, ठीक है. But what about this term? अच्छा, इसका क्या यूनिट हो? Should be the unit of this kg. मैच तो नहीं हुआ? मैच हुआ? तो मैच इसलिए नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं नेट मास फ्लक्स. हम लोग सिर्फ मास फ्लक्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो चेंज इन मास फ्लक्स को कंसिडर कर रहे हैं. चेंज इन मास फ्लक्स को डिपेंड करता है इस वैल्यू पे, डेल. व्हाट इज डेल? इसको हम डिफाइन करें. हाउ कैन यू डिफाइन डेल? ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व तीनों में यूज होता है ना. इसका एक्सप्रेशन क्या है? del by del x I plus, this is operator, right? This is operator j तो इसका डायमेंशन क्या है? 1 by length. And consider it as 1 by m with respect to distance over that. So that is why when I say del dot rho v, इसका dimension analysis अगर हम करें, so it's 1 by m into kg per meter square second. So that is again equal to kg per meter cube. So it actually matches. So ये बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन को समझने की जरूरत है. एक जगह पे चेंज इन डेंसिटी, दूसरी जगह पे रेट
of change of flux, that is the net flux, है ना? Okay, so this is clear content equation. मैं एक problem देता हूँ, then it will be again एक problem करो on content equation. अच्छा, let's do steady flow and one dimension. Steady flow means where the parameters are not changing with time. The flow parameters are remaining the same. Steady flow one dimension में continued equation को तुमको लिखना है, then you can simply write it as rho 1 A1 V1 is equal to rho 2 A2 V2. ठीक है, kg per meter square meter per second, so it is equal to kg per amount of mass flowing per unit time from one section to another section. दो सेक्शन का हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो दोनों के केस पे कांस्टेंट है. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन इफ इट इज अ स्टेडी फ्लो. ठीक है, इस इक्वेशन को मैं अगर बोलूँ कि यूज इट फॉर द केस ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, देन इट इज क्या A1 V1 is equal to A2 V2. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूटी इक्वेशन. नाउ एक प्रॉब्लम करो, just write it down. Water flows through a pipe. Exact words को लिखने की जरूरत नहीं, just symbolically also you can write it down. Water flows through a pipe of diameter 0.1 meters. Water is going through a pipe of diameter 0.1 meters at a velocity of 2 meters per second. ठीक है? If the diameter reduces to 0.05 meter, what is the velocity in the smaller section of the pipe? If the diameter reduces to 0.05 meter, what is the velocity of the fluid in the smaller section of the pipe? It's very very simple कुछ है नहीं इसमें. So what is happening is there is a flow of pipe ऐसे ठीक है. पहले यहाँ से जा रहा था, इसका एरिया डायमीटर कितना है 0.1 मीटर्स, इसका डायमीटर कितना है 0.05 मीटर्स. ठीक है, इसमें वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. मुझको जानना है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना. So simply we will use this equation. ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करके बोलो कितना हो रहा है. यहाँ पे एरिया, व्हाट शुड बी द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा यहाँ पाई d by 2 स्क्वायर.
just find out what could be the value of. मेरे पास A1 है, B1 है, A2 है. I need to find out what could be the value of V2. ज़्यादा होगा कि कम होगा? V2 ज़्यादा होगा क्योंकि उसका कितना होगा? 8 मीटर पर सेकंड. हाँ यस, तो V2 will be 8 मीटर पर सेकंड. ठीक है. अच्छा, सबका 8 मीटर पर सेकंड आया. इट्स क्लियर है यहाँ पे? इट्स क्लियर अप टू दिस? एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर. अच्छा, और एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ. इफ द वेलोसिटी is a velocity vector, the velocity field is expressed as 2x I plus minus 3y j plus wk. And if the fluid is incompressible in nature, that means rho is equal to 0. Okay. What is the value of कैसे करोगे इसको? ये continuity equation का application है. So if for incompressible fluids continuity equation का expression क्या हो जाता है? देखो, just physical हम लोग डिस्कस किया. क्या हो जाता है? Del dot V is equal to 0, है ना? It changes to del dot V is equal to 0. तो मुझको क्या करना है? del dot V अप्लाई करना है, and then I have to find the value of curve. कैसे इसको करोगे? So what should be value of del dot V? Del dot V मतलब क्या है? डेल बाई. अच्छा, पहले ये इसका जो आंसर होगा क्या वेक्टर क्वांटिटी होगा कि स्केलर क्वांटिटी होगा? डेल डॉट वी स्केलर क्वांटिटी होगा ना. सो डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0. सो क्या होगा मतलब डेल बाई डेल एक्स. तो इसका x कंपोनेंट लेंगे. व्हाट इज द x कंपोनेंट? 2x प्लस del by del y minus 3y plus del omega or del w by del z is equal to 0. इसका मतलब है टू minus 3 plus del omega by del z is equal to 0, है ना? del omega by del z is equal to 1. ठीक है? omega will be equal to ठीक है. दिस इज द आंसर. ओमेगा इज इक्वल टू दिस इज वेरी वेरी सिंपल. इसमें कुछ और कुछ है नहीं. राइट. ओके.
अच्छा, सो दिस इज कंसिडर्ड इक्वेशन। और एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रिगार्डिंग द मास ट्रांसफर, मास कंजर्वेशन, दैट इज कॉल्ड mass flow rate. Mass flow rate, it is usually expressed by dot, and it is given as rho A into V. Rho A into V. Density into area into velocity. So इसको डायमेंशन एनालिसिस अगर हम करें तो क्या होगा, kg पर मीटर क्यूब into meter square मीटर स्क्वायर into मीटर पर सेकंड. So this is again equal to kg per second. तो ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन था, रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, ये हम लोग बोल रहे हैं कि दिस एम डॉट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट. तो इसके ऊपर बेस करके देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स. इसको बोलो तो जस्ट राइट इट डाउन. अ फ्लूइड विद द डेंसिटी ऑफ 900 kg per meter cube, right, enters a pipe at a flow rate of 5 meter cube per second. density 900 kg per meter cube enters a pipe at a flow rate of 5 meter cube per second. What is the mass flow rate? What is the mass flow rate? तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन ऑफ द डेंसिटी is 900 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है. और दूसरी इंफॉर्मेशन है कि फ्लो रेट that is basically amount of volume per time, volume per second. ये Q से डिनोट होता है, Q, and it is equal to 5 meter cube per second. ठीक है. ये इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन हमारे पास है. हमको फाइंड आउट करना है एम डॉट. तो क्या होगा एम डॉट? फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस हाउ कैन वी रिलेट एम डॉट? डायमेंशन से मालूम पड़ जाएगा. डायमेंशन एनालिसिस कर उनको क्या चाहिए? हमको चाहिए केजी पर सेकेंड, है ना, केजी पर सेकेंड. सो केजी पर सेकेंड करने के लिए कौन से वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई रो विद क्यू. सो दिस इज इक्वल टू रो इनटू क्यू. कितना आ रहा है देखो. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 4500. हाँ 4500 यूनिट kg per second. ठीक है. तो थोड़ा सा क्लियर हुआ आइडिया. अच्छा, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हम लोग करते हैं. जस्ट राइट डाउन. नेक्स्ट प्रॉब्लम is a pipe deviates into two branches.
pipe ये एक पाइप है, इट इज डिविएटिंग इनटू टू डिफरेंट ब्रांचेस, एक ऐसे एक ऐसे. The flow rate in the main pipe is 0.3 meter cube per second. यहाँ पे जो फ्लो रेट है that is Q है, that is 0.3 meter cube per second. If the flow rate in the first branch यहाँ पे is 0.1 meter cube per second, or in the second branch is 0.15 meter cube per second. What is the imbalance? Check whether the conservation of mass is taking place here or not. Conservation of mass हो रहा है यहाँ पे? Water जा रहा है मान लो. Check whether the conservation of mass is taking place here or not. इसका मान लो velocity है. कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है कि नहीं हो. ऐसे प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसे पैरामीटर्स दिए गए होते हैं जस्ट टू कंफ्यूज यू. यहाँ पे ये जो दो पैरामीटर्स हैं की कोई जरूरत नहीं है, दैट जस्ट टू कंफ्यूज. हमको क्या चाहिए, वेदर वी हैव टू सी वेदर दिस क्यू जो इनिशियली था क्यू आई था और क्यू एफ था, वेदर क्यू आई इज इक्वल टू क्यू एफ. यहाँ पे हो रहा है. व्हाट इज क्यू आई? क्यू आई इज 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड. मतलब हमको दिखना है कि जितना वॉल्यूम अंदर जा रहा था उतना वॉल्यूम का बाहर आ रहा है पर सेकेंड. बाहर आ रहा है क्या? व्हाट इज क्यू एफ? क्यू एफ क्या होगा? दोनों को ऐड करेंगे. QF will be equal to what? 0.1 plus 0.15. That is equal to 0.25 meter cube per second. So it implies that QI is not equal to QF. So it means that the conservation of mass is not being satisfied. If the conservation of mass is not satisfied, एक imbalance create होता है. There is an imbalance. Leads to and इसको बोलते हैं imbalance. What is the imbalance? Imbalance is just simply QF or QI minus QF. कितना होगा ये QI minus QF? 0.05 meter cube. ठीक है. Like the next problem, a jet of fluid passes through a nozzle. Nozzle जानते हो ना? यहाँ से there is a fast flow of gas or fluid with high speed. Jet, anything jet. So a jet of fluid passes through a nozzle with an inlet and outlet diameter of 0.15. So this is a nozzle. Fast nozzle. इसका जो इनलेट डायमीटर है, मैं उसको
transport on PI. I stands for inlet. Inlet diameter is 0.08 meters. And outlet dia DO, it is, sorry, inlet is not 0.8. Inlet is 0.15. Here 0.08. The outlet is smaller than the inlet. And the velocity of the fluid is 5 meters per second. I and the inlet is 5 meters per second. What is the velocity at the outlet? Yeah, So what is the velocity? at the outlet. Sir, inlet और outlet दोनों relate to the fluid position. ये तो कुछ देखो, ये मैं आंसर नहीं करूँगा अभी तक क्लास में जितना कहा गया है ये सफिशिएंट है उसको आंसर करने। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर एरिया अगर अलग है तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू कांस्टेंट है, एरिया अगर अलग है तो वेलोसिटी अलग होगी। क्या होगा? एरिया अगर अलग है तो स्टॉप करो। नहीं, आंसर है 17.6 मीटर पर सेकंड। आंसर है 17.6। कैसे किया तुमने? 9.6 एरिया कैलकुलेट किया। इनलेट का एरिया क्या होगा? एरिया इज अगेन 0.1552। ये दोनों का एरिया होगा 0.08। ये होगा AI, ये होगा AO। And the equation will be AI DI equal to AO VO। VO will be equal to कितना? अभी फाइंड आउट करो whether it is matching with this one। 17.6 मीटर पर सेकंड आ रहा है। Yes, yes, sir. क्लियर है ना? 17.6। ठीक है। इसके बाद और एक प्रॉब्लम है, एक टैंक में एक इनलेट है There's an inlet
यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है। इसमें ऑलरेडी वाटर इसमें ऑलरेडी है 1 मीटर क्यूब, इसका इनिशियल वॉल्यूम। इनलेट का स्पीड है दैट इज क्यू आई, दिस इज इक्वल टू 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और आउटलेट का स्पीड है 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यू। ठीक है। The problem is after 10 seconds, टैंक में कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इन द टैंक। ये फाइंड आउट करना। 10 सेकंड के बाद टैंक में कितना वॉल्यूम होगा। तो बेसिकली हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे, हम लोग पहले इम्बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, देन उसको 10 सेकेंड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन एग्जिस्टिंग वॉल्यूम ऑफ द टैंक के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, इसका आंसर बोलो जस्ट इम्बैलेंस कितना होगा यहाँ पे, क्यू ओ माइनस क्यू आई, व्हाट इज द इम्बैलेंस, डेल्टा क्यू क्यू आई माइनस क्यू ओ, दैट इज 0.1 0.2 माइनस 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया हमारा इम्बैलेंस। ठीक है, मतलब इतना मेरा एक्सेस, दिस इज द नेट फ्लो मास वॉल्यूम पर सेकेंड। अब उसको टाइम कितना है, टाइम इज 10 seconds, so my net volume change in volume delta V will be change in imbalance multiplied by time, 0.1 kg meter cube per second into 10 seconds, 1 meter. So net already यहाँ पे 1 meter cube present था, so net volume will be 1 meter cube already existing plus 1 meter cube which has been added due to the imbalance. So answer is 2 meter cubes. 2 meter cube. Okay, this is the volume of the tank after 10 seconds. Right. इसके बाद और एक प्रॉब्लम है, एक स्टेडी स्टेट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक है, जिसका एक वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब है velocity as a function of distance. इसका velocity profile is given as 4 into 1 minus small r square by capital R square meter per second.
इसको बोलते हैं देयर इज अ पाइप, ठीक है। पाइप का रेडियस है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस है r, and this is the distance r. Usually whenever a fluid flows through a pipe, उसका जो velocity profile होता है वो होता है ऐसे, parabolic. Parabolic means y is equal to ax square plus to the power of square, ठीक है। ये इसका होता है Vmax, maximum velocity। सेंटर में Vmax होता है। ये जो हम लोग, मैंने कल कोई उसको ये क्वेश्चन नहीं किया, मैं तो लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था क्वेश्चन में कि जो हम लोग मोमेंटम ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं ना, मोमेंटम ट्रांसफर कहाँ से आएगा? मोमेंटम कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है? मोमेंटम ट्रांसपोर्ट हो रहा है बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। फ्लूइड जैसे जा रहा है, मान लो ऐसे, फ्लूइड को हम लोगों ने क्या किया कि डिवाइड द फ्लूइड इनटू डिफरेंट लेयर्स। एक लेयर यहाँ पे है, वी एज्यूम दैट इट इज नॉट मूविंग एट ऑल, लेकिन इसके बाद देयर आर अदर लेयर्स, ऐसे लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो एक लेयर से दूसरे लेयर में हो, फ्रॉम वन, इसको इंटरनल फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द लेयर्स, और इस इंटरनल फ्रिक्शन का और एक क्या नाम है? डिस्टॉर्शन, ठीक। सो द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट means that from the lowermost layer the momentum is being transferred as we move towards the center। और यहाँ पे जाके मैक्सिमम मोमेंटम ट्रांसफर यहाँ पे होगा, एक साइड से मोमेंटम ट्रांसफर होते होते सेंटर तक गया है, यहाँ से मोमेंटम ट्रांसफर होते होते सेंटर तक गया। इसलिए इस पॉइंट पे जो इसका अगर प्रोफाइल हम लोग देखें तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन, सेंटर से जो होता है, ठीक है। और इसका जो प्रोफाइल है वो ऐसे पैराबोलिक इन नेचर है। पैराबोलिक y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, मतलब समथिंग टू द पावर ऑफ 2। तो यही हुआ है, दिस शोज द वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे r है तुम्हारा पाइप रेडियस, तो यहाँ पे शो व्हाट यू हैव टू शो that volumetric flow, that is Q, volumetric flow is constant। इसको Q constant शो करना है, ठीक है। What is the volumetric flow? अगर वेलोसिटी के साथ मैं अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को रिलेट करना चाहूँ तो मैं कैसे रिलेट कर सकता हूँ? वेलोसिटी के साथ आई वुड लाइक टू रिलेट Q एंड V। What should be the relationship between Q and V? एरिया, इसका यूनिट कितना है? kg, सॉरी नॉट मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका यूनिट कितना है? मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी इनटू एरिया इज इक्वल टू q, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर इज एरिया, दिस इज A,
ये कितना होगा 2 पाई आर डी आर। ठीक है ना, I think you know all these things. 2 पाई आर डी आर. So what will be Q? Q will be simply हम लोग एक साइड से कंसीडर करेंगे 0 to r into dA और dA की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 by r। तो करो और कितना मेरा आंसर हो रहा है। सो मुझको क्या प्रूफ करना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रूफ करने के लिए मुझको व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? कांस्टेंट प्रूफ करने के लिए रिक्वायरमेंट इज दैट इसका जो एक्सप्रेशन होगा, इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा उसमें कुछ वेरिएबल टर्म नहीं होगा। Whatever expression it will have, it will all be constants. So what are the constants that we have here? Let's take a first of all do it. Find out what is the number of one. बहुत simple है Chinese. गेट में ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का एक बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हमारे जो सीनियर बैच है उनका एग्जाम्स है ना, गेट आई थिंक इज 1 February, तो वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये वाला क्या होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग उसको ठीक से करो। और मैंने आज सुबह तुम लोगों से एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, ठीक है। उसमें एक MIT का ओपन कोर्सवेयर का लिंक है और दूसरे एक बुक का लिंक है, बर्ड, BIRD, बर्ड। वो वाला बुक पढ़ना। और मैं और एक लिंक तुम लोग को दे दूँगा जिसमें कि 25,000 शायद प्रॉब्लम्स हैं ऑन ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। सो आफ्टर ये तो कोर्स, तो देयर इज अ लिमिटेशन टू दिस कोर्स, राइट। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, तो हर एक एस्पेक्ट में इन्वॉल्व है, केमिकल इंजीनियरिंग, इवन एनी एक्सपेरिमेंटल। कल एक PhD वाइवा में गया था शाम में, तो वहाँ पर भी वो लोग टर्बुलेंट फ्लो, एनर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पर वो लोग टर्बुलेंट फ्लो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हीट एंड मास ट्रांसफर। सो इन एवरी एस्पेक्ट यू विल हैव दिस ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। सो इस क्लास में जितना पॉसिबल हो सके कवर हो सके, लेकिन इसके बाद यू जस्ट कीप ऑन डूइंग द प्रॉब्लम्स। कितना हुआ? तुम लोग के इसके बाद कोई कौन सा क्लास फ्री है? हाँ, सेकेंड हाफ में। अच्छा ठीक है, चलो मुझे लग रहा था सेकंड वाला फॉर्म कवर कर, ठीक है। वो इतना आवाज होगा फ्राइडे को है ना 12:15, ठीक है। इसका आंसर बोलो। बर्नौलीज इक्वेशन को जस्ट एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा। नहीं, डिफरेंट इंटीग्रल है ना, जस्ट टेल मी एग्जैक्ट। सर 2 by r आंसर है 2। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 2 by r स्क्वायर। ये से 2 by r। 2 by r स्क्वायर, ये सब लोगों ने नहीं आया, वेरी इजी। ये इसका आंसर होगा। तुम लोग इसको ट्राई करना, मैं अभी नहीं करूँगा, ठीक। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। Bernoulli's equation means conservation of energy. पहले मैं इसकी एक्सप्रेशन लिखता हूँ। इसका एक्सप्रेशन है E प्लस हाफ रो E स्क्वायर प्लस रो GH
मतलब volume of motion. This is pressure and this is kinetic energy per unit volume. This is potential energy per unit volume. So इसका statement है कि the pressure energy, the kinetic energy and the potential energy per unit volume is equal to constant. तो यहाँ पे प्रेशर और वेलोसिटी और यहाँ पे देखो क्या क्या टर्म्स है, जैसे जी प्रेशर एक टर्म है, कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, जी इज ए कॉन्स्टेंट एंड रो इज ऑल्सो constant which is not depending upon the flow. Mechanics के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. और the flow state of the liquid के ऊपर रो डिपेंड नहीं करता, because this is the interim property of liquid. Liquid है तो है, इसका एक then G, they are in variable quantities. Variable quantity यहाँ पे क्या है? प्रेशर है, वेलोसिटी है और हाइट. ठीक है. तो बेसिकली ये एनर्जी इक्वेशन जो है वो मैं कल बोल रहा था ना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स. इफ द वेलोसिटी इज in this case, then we say that this हाइड्रो मतलब हाइड्रो तो वाटर के लिए यूज होता है, इट कैन इट्स एप्लीकेबल टू एनी फ्लूइड. सो इट इंडिकेट्स दैट वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट हाइड्रोस्टैटिक्स. And if it is not equal to 0, then we are talking about hydrodynamics. डायमेंशन एनालिसिस करते हैं. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ से इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दिस. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, तो इसके साथ पर वॉल्यूम ऐड किया है, तो वॉल्यूम एंड मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसका मतलब इनटू हाफ रो वी स्क्वायर. ये वाला एक्सप्रेशन. ठीक है. Similarly, what is potential energy? Normally it's mgh. तो per volume का मतलब again this is getting converted to रो. उसी तरीके से what is pressure? Pressure को हम लोग कैसे कर सकते हैं? Pressure is Newton per meter square, force by area. Force area Newton per meter square. इसको पास्कल्स भी बोलते हैं. ठीक है, लेकिन पास्कल के साथ ये दोनों तो मैच नहीं हो रहे. तो प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या हो गया? Pascals is Newton per meter square per unit volume. So, NU.
ओके, अच्छा ये इन सबका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ देम इज जूल्स, एनर्जी पर यूनिट पर मीटर क्यूब, है ना? ये भी है जूल्स पर मीटर क्यूब। व्हाट इज अ जूल? एनर्जी का यूनिट क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसके साथ मैं अगर ऊपर नीचे मीटर ऐड करता हूँ तो जूल्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग प्रेशर वॉल्यूम नहीं करेंगे। सो द प्रेशर इटसेल्फ, pressure itself is an expression of energy per volume. So per volume वाला जो consideration है, that is applicable only for kinetic energy and pressure. pressure का मतलब ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ इसका एप्लीकेशंस में बोल के आई विल जस्ट क्लोज द टॉपिक टुडे। इसका एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका एप्लीकेशन है एयरक्राफ्ट विंग्स। हम लोग इसमें बेसिकली वी कैन फाइंड आउट, ये जो मैंने एक्सप्रेशंस कहा था वेरिएबल्स हैं, बेस्ड अपॉन दिस बर्नौलीज इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन प्रेशर, the change in volume and the change in height। कोई एक प्रैक्टिकल केस में, कोई प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, तो एयरक्राफ्ट में जो विंग्स होते हैं, विंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, उसमें कितना प्रेशर लगेगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन दिस बर्नौलीज इक्वेशन। देयर इज a device called Venturi meter। बेसिकली वाटर फ्लो, जितना प्रेशर ऑफ द वाटर है ये डिफाइन करने के लिए होता है, इसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक को बोलते हैं साइफोन्स। साइफोन से मतलब मुझे अगर पानी एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाना है, तो either I can use a pump or I can make the design in such a way that by use of gravity I can transfer water from one place to another। So the use of gravity, pressure pumps को क्या करेगा, मुझको एक piston और एक force लग रहा है, you need certain sort of energy, लेकिन naturally अगर मुझको एक जगह से दूसरी जगह पे water transfer करना है, एक स्टोरेज सिस्टम से दूसरे स्टोरेज सिस्टम तक, then with the use of gravity I can do it। Gravity, I will make the design of the system in such a way that by use of gravity I can transfer water from one place to another। इस केस में भी बर्नौलीज इक्वेशन यूज है। और जो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ है दैट इज कॉल्ड टॉर्पीडोज। यू नो व्हाट इज अ टॉर्पीडो? इज सबमरीन का जो मिसाल है, राइट, सबमरीन का मिसाल शीट लाइक दिस, सबमरीन के अंदर दो सबमरीन्स में जब फाइट होते हैं, वन सबमरीन को अंदर सबमरीन यू थ्रो टॉर्पीडो। टॉर्पीडो का है कि व्हेनेवर इट स्ट्राइक्स द टारगेट इट ब्लास्ट्स। तो टॉर्पीडो मोशन में भी यू रिक्वायर दिस बर्नौलीज इक्वेशन। सो देयर आर लॉट ऑफ, ठीक है, मैं डिस्कस करूँगा इन माय नेक्स्ट क्लास इन डिटेल्स व्हाट इज द टॉर्पीडो इक्वेशन इज एंड व्हाट इज द फर्दर डिटेल में हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।